Hello everyone. Today's topic is David Hume. Hume's theory of causation. Hume का कार्य कारण सिद्धांत. लास्ट वीडियो में हमने डेविड ह्यूम शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था उनका इम्प्रेशन एंड आइडिया, और उसी को बेस बनाते हुए हम इनका कॉजेशन थियोरी भी पढ़ते हैं. इस वीडियो के पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए. और इंट्रोडक्शन भी मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी थी. सो डेविड ह्यूम इज़ वन ऑफ द ब्रिटिश impressist ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड along with जॉन लॉक एंड जॉर्ज बर्कले. तो जैसे कि लॉक एंड बर्कले इम्प्रेसिस्ट थे, डेविड ह्यूम भी इम्प्रेसिस्ट है, जो मानते हैं कि एज देयर आर नो इनेट आइडियाज़. हमको हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से पता चलती है. So, although the three advocate similar empirical standard for knowledge, that there are no innate idea and that all knowledge comes from experience, जैसा कि मैंने कहा. Hume is known for applying this standard rigorously to causation and necessity. लेकिन ह्यूम की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं उनके कॉजेशन थ्योरी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. David Hume's theory of causation is a fundamental aspect uh, of his empiricist philosophy. Hume's most important contribution to the philosophy of causation are found in a treatise of human nature and inquiry concerning human understanding. तो उनकी जो causation की theory है वो especially इन books में मिलती है, treatise of human nature and an inquiry concerning human understanding, though the latter generally viewed as a partial recasting of the former. In this work, Hume challenged the traditional notion of causation and present a radical empiricist account that has had a profound influence on modern philosophical thought. So traditional causation क्या है कि हर इफेक्ट का एक पर्टिकुलर कॉज है और उनके बीच एक नेसेसरी रिलेशन है. जहाँ भी इफेक्ट होगा कॉज होगा, जहाँ भी कॉज होगा इफेक्ट होगा. ये दो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एक प्रेजेंट है और एक नहीं. ये एक ट्रेडिशनल व्यू है कॉजेशन का और ह्यूम इसी को चैलेंज करते हैं. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, एक तरह से हम उसको ब्रीफ कर लेते हैं. Hume believed that knowledge was derived from sensory experience. According to Hume, knowledge that accumulate within the mind are perceptions. And further, perceptions are divided into impressions which come from senses and ideas which come from intellect and memory of impressions. So, for example, the sensory experience of riding on a roller coaster is an impression, whereas recalling how it felt to ride on a roller coaster आफ्टरवर्ड इज एन आइडिया. कि पहले जब हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इम्प्रेशन है, और जब हम उस एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं, हम उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं, तो वो आइडिया हो जाता है. सो ह्यूम बिलीव दैट इम्प्रेशंस वर मच स्ट्रॉन्गर देन मोर इंस्टेंस देन आइडिया which were faint image of reasoning thinking and belief that are formed from impression. तो जो आइडियाज होते हैं वो एक फेंट इमेज होती हैं. क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस को ही रिकॉल करती हैं. ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉजेशन? जब हम पढ़ रहे हैं कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है, तो कॉजेशन का क्या मतलब है? So to understand Hume's theory of causation, we must explore his view on causation and the problem of induction and the implication of his empiricist approach. So causation, सबसे पहले हम causation को समझते हैं. Causation describe the relationship between two separate things which were which where one thing X cause another thing Y to occur, which is also called cause and effect. कि हमेशा x
जो है वो कॉज किसी दूसरी थिंग, किसी दूसरे इफेक्ट का कॉज होगा। तो इस तरह से ये कॉजेशन है, एक रिलेशनशिप होता है दो सेपरेट थिंग के बीच में। एंड ह्यूम सॉ कॉजेशन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इम्प्रेशंस और आइडिया। और ह्यूम का जो कॉजेशन है वो किसके बीच की रिलेशनशिप है? टू इम्प्रेशंस और टू आइडिया, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। ही और क्यू दैट because causation is defined by experience as any cause and effect relationship could be incorrect. This is important क्योंकि यहाँ पे देखिए वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि causation हमको experience के थ्रू मिलता है। क्यों? क्योंकि आइडिया एंड इम्प्रेशंस भी एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो कहते हैं कि कोई भी कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है जो आपको पहले से दिया है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज थॉट्स आर सब्जेक्टिव एंड देयरफॉर कॉजैलिटी कैन नॉट बी प्रूवन। क्योंकि हर कोई उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को परसीव नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो सब्जेक्टिव मैटर है, ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं है। So he believed causality was not necessarily empirically sound because it is the subjective mind that assume there is a cause and effect based on past experience. So this is a causation theory and the challenge to causation theory, traditional causation theory. Now अब ह्यूम का concept क्या है causation को लेके, कि वो क्या मानते हैं? So to address the problem of causation, Hume employs his empiricist approach to philosophy, which emphasizes the role of sensory experience in the acquiring knowledge. So, according to Hume, all the ideas originate from impression, which are direct and vivid experience gained through our sense, as I said. So the process of forming idea involve copying our impression either directly or through association. ये वो कहते हैं कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इम्प्रेशन और आइडिया वो हमें एक्सपीरियंस के थ्रू, सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू मिलते हैं। और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आइडिया होते हैं, जो प्रोसेस है आइडिया को फॉर्म करने की, वो क्या होता है? इम्प्रेशन का कॉपी होता है। ठीक है, तो ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। सो ह्यूम बिगिन हिज इंक्वायरी इनटू कॉजेशन बाय एग्जामिनिंग our understanding of cause and effect relationship. He notes that human beings have a natural inclination to believe in causal connection between events, कि हम आम तौर पर हम इवेंट्स और कॉज के बीच एक कनेक्शन फाइंड करते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व वन इवेंट फॉलोइंग अनदर इन अ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट मैनर, वी टेंड to attribute a causal relationship between them. For example, if we see a cue ball strike another ball and set it in motion, so we naturally conclude that the first ball caused the movement of the second ball. हम कहते हैं ना कि आपने वो देखा होगा, एक बॉल को हिट करो तो वो दूसरी बॉल को मारते हुए सब बॉल एक कॉर्नर में चली जाती हैं, गड्ढे पे चली जाती है ना। तो इस तरह से वो क्या हो गया, एक बॉल दूसरे बॉल को क्या कर रही है? कॉज बन रही है। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब दो इवेंट को इस तरह से देखते हैं कि हमेशा वो साथ में दिखाई देते हैं, तो वो एक कॉज एंड इवेंट या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बनता जाता है नेचुरली। और यही ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें लगता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट इस तरह से होता है कि ये प्री डिफाइंड है। बट ह्यूम कहते हैं नहीं, ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड है। क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तभी हम कह रहे हैं कि ये इसका कॉज ये है, एक्स का कॉज वाई है या वाई का कॉज एक्स है। हम अपने एक्सपीरियंस के बल पे कह रहे हैं। ठीक है, सो नाउ ह्यूम्स स्केप्टिकल पर्सपेक्टिव। अब ह्यूम का जो स्केप्टिकल पर्सपेक्टिव है कि वो किस तरह संदेह करते हैं कि जो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो प्री डिफाइन नहीं, वो हमारा एक्सपीरियंस पर होता है। सो हाउ एवर ह्यूम क्वेश्चन
the basis of our belief in causation. He points out that our knowledge of causation connection is not derived from reason or logical necessity. This is important. This this is about uh, the necessary relation uh, of cause and effect. It seems, ऐसा कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ना कॉज एंड इफेक्ट के बीच एक नेसेसरी कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं है. तभी वो कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ कॉजल रिलेशन इज नॉट ड्राइव फ्रॉम रीजन और लॉजिकल नेसेसिटी. तो ये कहाँ से आता है? इंस्टेड आवर बिलीफ इन कॉजेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हैबिट और कस्टम formed by our repeated observation of the conjoining of event. हम एक ही इवेंट्स को बार बार उसी फॉर्म में देख रहे हैं तो हम कनेक्ट कर देते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं. सो ह्यूम सेंट्रल क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉजेशन इज हाउ वी कैन क्लेम knowledge of necessary connection between cause and effect when our observation only reveals sequence of events without any necessary link between them. उनके बीच कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं होता. ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेम कॉज सेम इफेक्ट के बारे में पता चले. हो सकता है फ्यूचर वहाँ चेंज भी पॉसिबल है. इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस. So Hume's skepticism extends to the idea of necessary connection in the external world. He argued that we cannot know whether one event necessarily cause another as our knowledge is limited what we directly observe. हम हर चीज को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते. So the idea of necessary connection between cause and effect is a projection. किस चीज का प्रोजेक्शन है? प्रोजेक्शन ऑफ आर ओन मेंटल हैबिट्स एंड एसोसिएशन रादर देन इनहेरेंट फीचर ऑफ रियलिटी. ये जो हमारे माइंड में एक एसोसिएशन है कि एक चीज़ दूसरे से रिजेंबल कर रही है तो हम उसमें कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ लेते हैं, या उनमें कॉन्टिन्यूटी है तो कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ लेते हैं, या कांस्टेंट कंजक्शन है तो हम कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ लेते हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, कॉजल इन्फ्रेंस एंड एसोसिएशन ऑफ आइडिया. सो एसोसिएशन आइडिया हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है टॉपिक. तो ह्यूम कहते हैं कि हम कैसे कॉज एंड इफेक्ट को कनेक्ट कर लेते हैं, हम एक उनके बीच रिलेशनशिप की बात कैसे कर लेते हैं. सो ह्यूम आर्ग्यू दैट आवर बिलीफ इन कॉजेशन is not the result of direct sensory impression but arise from the association of ideas. When we observe a regular conjunction between two events, such as striking of a cue ball and the movement of another ball, we naturally associate the two events. The more frequently we observe this conjunction, the stronger our belief in this causal relation becomes. ह्यूमन आइडेंटिफाई थ्री प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन जो मैंने अभी आपको बताए और जो हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज रिजेम्बलेंस, कॉन्टिन्यूटी एंड कांस्टेंट कंजक्शन. नाउ रिजेम्बलेंस, आइडिया दैट रिजेंबल वन अनदर आर नेचुरली एसोसिएटेड, कि जो एक दूसरे से मिलता हुआ दिखता है तो हम उसे कॉज एंड इफेक्ट का इन्फ्लुएंस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी सी अ फ्लेम and feel warmth. So the resemble between the visual and tactile impression leads to the association of fire with heat, है ना. Then second, continuity. Continuity क्या है? Ideas that are experienced together or in close succession become associated. कि या तो हम उन्हें एक साथ देखते हैं या क्लोज सेशन यानी एक के बाद तुरंत दूसरा, निरंतरता के साथ, है ना. कहते हैं ना कॉन्टिन्यूटी है, एक आया तो दूसरा आएगा. मान लो दो बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है तो कहते हैं एक आया तो हम दूसरा भी ज़रूर आएगा, इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रेगुलरली सी लाइटनिंग फॉलोड बाय थंडर, सो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू इवेंट्स लीड टू द एसोसिएशन ऑफ लाइटनिंग कॉजिंग थंडर. कि पहले थंडर होता है तो उसके बाद बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं तो उसके बाद बिजली कड़कती है. क्यों? क्योंकि हम ये क्वांटिटी में देखते हैं तो हमें लगता है बिजली का कारण क्या है? बादल का गरजना.
constant conjunction, when we when two events are frequently and consistently conjoined. So we tend to associate them as cause and effect. For example, uh, if we always see a specific chemical reaction resulting a particular outcome, so we naturally assume a causal connection between reaction and outcome. तो मान लो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केमिकल से एक पर्टिकुलर आउटकम निकलता है, तो जब भी वो इवेंट होते हैं तो हमें लगता है कि ये एक कॉज है और एक इफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया एसोसिएशन ऑफ आइडियाज जिनके बेस पे हम कॉज एंड इफेक्ट को लिंक कर देते हैं। नाउ अब ह्यूम के इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है, वो है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये क्या है, इसको हम क्रिटिसिज्म में भी कई लोग पढ़ते हैं और अलग से भी डिस्कस करते हैं। ह्यूम theory of causation raise a problem of induction which question the justification for making inductive inference about the word। कि जो हम वर्ड के बारे में इंडक्टिव इन्फ्रेंस क्या होता है, जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व पैटर्न। हम किसी चीज़ का जो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं उसको जनरलाइज कर देते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि एक्स इज अ क्रो एंड इट इज़ ब्लैक, वाई इज अ क्रो इट इज़ ब्लैक, जेड इज अ क्रो इट इज़ ब्लैक, सो मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्रोज आर ब्लैक। ठीक है, ये इंडक्शन है, दिस इज अ मेथड ऑफ इंडक्शन। तो हमने जनरलाइज कर दिया, ये होता है इंडक्शन। सो ह्यूम शोज दैट एक्सपीरियंस डज नॉट टेल अस मच of two events A and B. We say that A causes B when the two always occur together, that is are constantly conjoined। ये हम कहते हैं कि A और B जब हमें हमेशा दिखते हैं तो कहते हैं A causes B। ठीक है, वो B का cause है। Whenever we find A, we also find B, so we have a certainty that this conjunction will continue to happen। Once we realize that A must bring about B is tantamount merely to due to their constant conjunction, we are psychologically certain that B will follow A, then we are left with a very weak notion of necessity। कि ये तो किस पे डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट कंजक्शन पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट नहीं है। अब वो कहते हैं दिस टेनस ग्रेस्प on a causal efficacy help give rise to the problem of induction। यहीं से प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन रेज हो जाता है जब हम इस तरह के जनरलाइजेशन कर देते हैं। दैट वी कैसी प्रॉब्लम है ये, दैट वी आर नॉट रीजनेबली जस्टिफाइड इन मेकिंग एनी इंडक्टिव इन्फ्लुएंस अबाउट वर्ड। हम रीजन के साथ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ह्यूम्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन हैज significant implication for the problem of induction। Induction is the process of generalizing from observed instance to make predictions about future occurrence। एक जनरल प्रोसेस है ये। एंड फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन वी इंक्लूड द सन विल राइज टुमारो, क्योंकि हम उसे अभी तक ऐसे देखते आ रहे हैं कि रोज सूरज उगता है ना, तो हम ये इन्फ्रेंस हमने कर रखा है और ये जनरलाइज कर दिया इसको कि रोज सूरज उगेगा। सो ह्यूम आर्ग्यू दैट इंडक्शन एज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज नॉट जस्टिफाइड बाय रीजन और लॉजिक। ये है कि इस तरह के जनरलाइजेशन में रीजन और लॉजिक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो आर बिलीव इन द रेगुलरिटी ऑफ नेचर एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉजल कनेक्शन is based solely on our past observation and habits of thought। So this is no logical guarantee that there is no logical guarantee that the future will resemble the past or that observed pattern of causation will persist। तो वो कहते हैं कि लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना, जो आज हुआ है वो कल भी हो, जो सूरज अभी तक निकल रहा था वो कल भी निकले। सो क्रिटिक आर्ग्यू दैट if critique argue that if we cannot establish necessary connection between cause and effect, it becomes challenging to justify our beliefs
in the reliability of induction. This problem challenge the scientific method or our ability to make predictions based on past observation. तो इस तरह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हम प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हो गई थ्योरी ह्यूम की। अब एक क्रिटिसिज्म तो ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। कुछ और भी क्रिटिसिज्म रेज होती हैं, ठीक है। सो डेविड ह्यूम थ्योरी ऑफ कॉजेशन हैज बीन बोथ इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल विद इन वेस्टर्न फिलोसफी। While many aspects of his philosophy has been praised, his view on causation have also faced significant criticism. And some of main criticism of Hume's theory of causation include, for example, first is rejection of necessary connection. जैसे कि वो कहते हैं ना कि कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सो ह्यूम्स मोस्ट फेमस क्रिटिसिज्म ऑफ कॉजेशन इज हिज रिजेक्शन ऑफ नेसेसरी कनेक्शन between cause and effect. He argued that we never directly observe a necessary connection between events, only their constant conjunction. ह्यूम यही कहते हैं कि हम कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं फाइंड करते, हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। बट क्रिटिक आर्ग्यू दैट ह्यूम्स डिसमिसल ऑफ नेसेसरी कनेक्शन can undermine our understanding of causation, as it seems to disregard the intuitive sense that cause produce effect is a consistent and predictable manner. तो वो कहते हैं कि बट अगर हम ये थॉट एक्सेप्ट करते हैं कि कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है, तो कॉजेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करना, उसे समझना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है, कोई यूनिवर्सल थ्योरी वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। देन सेकेंड, इग्नोरिंग माइंड इंडिपेंडेंट वर्ड। Hume's empiricist approach primarily on impression and ideas derived from sensory experience. Here, critique content that कि वो क्या बोलते हैं, critique content that by neglecting possibility of mind independent entity and their causal relationship, Hume's theory limited our understanding of causation to subjective experience. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस्ड करके कॉजेशन को समझा रहे हैं, जो प्रॉब्लमेटिक है, पोटेंशियली इग्नोरिंग द ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट दीज एक्सपीरियंस अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव थ्योरी नहीं होगी तो इस तरह से तो हम हर चीज़ पर स्कैप्टिक हो जाएंगे कि पता नहीं इसका कॉज ये है कि नहीं है। तो इस वर्ड में हम कॉजेशन को कैसे समझाएंगे, हम किसी इफेक्ट के सोर्स की बात कैसे करेंगे, है ना। सो ये एक प्रॉब्लम है। देन कॉजेशन इन द फिजिकल साइंस। Critics argue that Hume's skepticism about causation might undermine the foundation of the physical science. Science rely on causal relationship to explain natural phenomena and predict future event. तो साइंस क्या करती है, जो नेचुरल फिनोमिना है और जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उनके बीच एक कॉजल रिलेशनशिप फाइंड करके अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। Now, Hume's theory raised question about the legitimacy of such explanations and predictions, potentially casting doubt on the scientific method itself. क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव मैटर पर बेस नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी की बात करते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। देन लैक ऑफ नॉर्मेटिविटी। नॉर्मेटिव मीन्स होती है सामान्यता, ठीक है। So, Hume's theory of causation lacks normativity, meaning it does not offer a clear guide for determining what is valid causal claim and what is not. क्योंकि आपने कह दिया कि ये तो एक्सपीरियंस से पता चलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा किसका एक्सपीरियंस वैलिड है और किसका नहीं। देखिए, इसका ये होता है कि मान लो 3 फ्रेंड हैं, ठीक है, जो अक्सर साथ दिखते हैं। अब राम, श्याम एंड सीता,
ठीक है, अब वो कहते हैं कि राम श्याम एक साथ आते हैं ज़्यादातर। राम आए तो श्याम भी आएंगे। किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि राम आता है तो श्याम भी आता है। किसी दूसरे ने ये ऑब्जर्व किया कि श्याम आता है तो सीता भी आती है। किसी थर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि सीता आती है तो राम श्याम दोनों आते हैं। तो क्या हो गया, हमें एक पर्टिकुलर कॉजेशन रिलेशनशिप नहीं मिल रही है, कॉजल रिलेशनशिप नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सो critique argue that without a clear criterion for establishing causal relationship, Hume's theory can be seen as leaving us in a state of epistemic uncertainty, hindering our ability to make informed decision। एक अनसर्टेनिटी रहेगी, क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एक क्लियर कॉजल रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर पा रहे। Then limits of causal knowledge. Hume's theory implied that we can never truly know the cause of an effect with certainty. Only observe pattern of correlation. हमेशा हम पैटर्न ही ऑब्जर्व करते रहेंगे, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट का एक सर्टन रिलेशन हमें कभी पता नहीं चलेगा। Critique contend that this limitation can hinder our ability to understand and address complex phenomena, especially in case where deep understanding of causal mechanism is required। हम हर चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतने बड़े फिनोमिना में ऐसे कई इवेंट्स हैं, कई कॉज एंड इफेक्ट की चेन है जो हमारे एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो तो ये तो लिमिटेड हो गया ना, हम हमारी नॉलेज भी तो लिमिटेड है। तो आप कहो कि नहीं, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं वो वहीं पे हम कॉज एंड इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, कोई यूनिवर्सल कोई लॉजिकल नेसेसरी रिलेशन नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। Then next, denial of necessary existence. Hume's philosophy has been criticized for denying necessary existence, such as that of God or other metaphysical entity. Critique argue that by rejecting necessary connections, Hume's theory could lead to a denial of necessary existence, potentially undermining traditional metaphysical and theological belief। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ज़्यादातर थियोलॉजी की तरफ से आ सकती है, क्योंकि वो गॉड और मेटाफिजिकल एंटिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये है ह्यूम की कॉजेशन थ्योरी। कॉजेशन थ्योरी ह्यूम की और भी डीप है। आप ओरिजिनल जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको और एलेबोरेशन मिलेगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।